about the last chapter we did and the shloks we did today. So my understanding from these shloks is from the last chapter we can gather few things, like Arjun was in dilemma. According to him, killing someone is sinful, and he thought what he would get with victory achieved by such a heinous act. It would not make him happy if he gets victory at the cost of losing his own people. He was correct over there. His arguments were really powerful. Now in chapter 2, he again continues saying that, Arjuna states that Bhishma and Dronacharya are worthy of his respect and adoration. Dronacharya was his guru, and Arjuna mastered his art of archery from him. So, to treat these men of high merit as enemies now seemed abominable to noble minded Arjun. His statement is implying that yeah, he's actually talking to Shri Krishna, and he's saying, please do not doubt my courage. I am prepared for the fight, but from the perspective of moral duty, my duty is to respect my teachers and show compassion to the son of Dhritarashtra. So he is saying that he would prefer begging than commit this heinous crime. He will not be able to enjoy the victory if he wins by killing his elders and his relatives. It shows how Arjun wants to walk on the right path, and he is also showing how important it is to live with human values. The compassion and empathy he is feeling for his relatives is the proof of this. He is even saying after killing them, he will not be having any desire to live. So he is not willing to live after killing his family members, and after winning in this battle. The respect that Arjun has for his gurus, even they are standing against him in the battlefield. This is telling a lot about being grounded, compassionate, empathetic, and respectful towards everyone. Arjun's conversation in the battlefield shows that even if his relatives are standing against him in Kurukshetra, he must stick to his fundamental values. On the other hand, Shri Krishna is making Arjun very uncomfortable by his statements, and if Shri Krishna wanted, he would have comforted Arjun by now. But no, he just wanted Arjun to feel this and understand his emotions. When in real life, in our lives, when we are confused, we also feel uncomfortable, since in such situation, when we are confused, we feel uncomfortable, since it is very natural for us, and it is a natural condition of human being. Like whenever we are confused, we will be becoming uncomfortable. Now Shri Krishna is only confusing Arjun to make his thoughts clearer about the battle. He just wants him to be very clear about what he is trying to do and why he is standing in the battlefield of Kurukshetra. So this is it from my side. I have understood this much from this part. So if anyone has to say anything, you can just go ahead. नमस्कारम सभी को। कुछ पार्ट जो मैं यहाँ सभी से डिस्कस करना चाहती थी, हमारे पिछले सत्र में रह गया था। मैं उस भाग को कंटिन्यू करना चाहूंगी आप सभी की सहमति के साथ में। अगर हमें समय की बाध्यता नहीं है तो क्या मैं इस भाग को आगे बढ़ा? हाँ पूजा, अब हमारे पास समय की कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद। तो मैं प्रकाश डालना चाह रही थी गीता के श्लोक के सातवें भाग पर, जो कि कुछ इस प्रकार है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः
यश्रेयः स्यानि स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो इस श्लोक पर ही मैंने क्यों प्रकाश डालना चाहा, इसका मैं जो है इसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि आज जो जो भी उलझने अर्जुन के द्वारा महसूस की गई है, जो भी उलझने अर्जुन के द्वारा सामना की गई है, उन्हीं उलझनों को आज के इस जीवन में हम भी कहीं ना कहीं महसूस करते हैं, और हम भी कहीं ना कहीं उन उलझनों में ही उलझे रहते हैं, चिंतित रहते हैं। और हम जो कर्म करना होता है उसके लिए हम उससे हम क्या कह सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और हम मार्ग ढूंढते रहते हैं कि हमें कोई 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 मार्ग बताए जिससे हम इन सारी चिंताओं से मुक्त हो पाए, लेकिन हमें वो मार्ग मिल नहीं पाता। तो इस श्लोक का अर्थ है, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ, जो कि बोल रहे हैं श्री कृष्ण से महान योद्धा अर्जुन। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो श्री कृष्ण की शरणागति लेकर अर्जुन यहाँ पर अपनी चिंताओं, अपने संशय से मुक्त होना चाहते हैं, और ये कहना चाहते हैं कि अर्जुन यहाँ श्री कृष्ण की शरणागति लेकर अपनी सभी चिंताएं, अपने सभी संशय और अपनी सभी असमंजस की स्थिति को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर उनसे उपदेश की कामना करते हैं। यह श्लोक आज हर मनुष्य की मन स्थिति से अत्यंत जुड़ा हुआ है। आज हम इस भौतिक युग में हर कदम पर ऐसी उलझनों का सामना करते हैं। ये उलझने किसी और या स्वयं द्वारा चाहने ना चाहने पर भी स्वतः ही व्यक्ति की मना स्थिति में आ जाती है, और इसके लिए यह जरूरी है कि हम हमारे गुरु की शरण लें, जो हमें इन सभी चिंताओं से किस तरह पार होना है और क्या सही है क्या गलत है, इसके लिए हमें उपदेश दें और हमें हमारे सही मार्ग का चयन करने का आभास कराएं। इसके पश्चात मैं जो आज की विचारधारा पर जो भी आज के विज्ञान में हमें कहा गया है, या फिर सालों से जो वैज्ञानिक शोध करते आए हैं, उसके लिए भी हमारे शास्त्रों में पहले से ही ये वर्णन है कि हमारा जो शरीर है, द थिंग विच वी से कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, तो यह चीज हमें पहले से ही हमारे शास्त्रों में बता दी गई है, जो कि कुछ इस प्रकार श्लोकों में वर्णित है। बालाग्रत शत भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञेय च चान्तेय कल्पते। यदि बाल के अपर भाग को 100 भागों में भी विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। और इसी कथन को निम्नलिखित श्लोक में फिर से वर्णन मिलता है, जो कि इस प्रकार है। केशाग्रत शत भागस्य शतांश सादशमाकः जीवः सूक्ष्म स्वरूपो अयम संख्यातीतो ही चित्कणः। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण है, जो माप में बल के अगले भाग के 10,000वें भाग के बराबर है। और यही बात सिद्ध करने के लिए कई वैज्ञानिकों ने शोध किए हैं, जिसे आज हम परमाणु या एटम के रूप में शब्द में पढ़ते हैं। सत्र के शुरुआत में हमने भगवान जगन्नाथ के विषय में कुछ
लीलाओं भैया पूजा डिस्कनेक्ट हो गई है, तो अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप कर लीजिए। मैं क्षमा चाहूंगी, नेटवर्क एरर की वजह से शायद मैं डिस्कनेक्ट हो गई। तो मैं अपने अंतिम पड़ाव पर, जो हमने शुरुआत में श्री जगन्नाथ भगवान की कुछ लीलाओं के बारे में पढ़ा है, तो मैं उनमें से एक लीला वर्णित करना चाहूंगी, जो कि हमारी आज की बहुत से मनुष्यों की विचारधारा को समाप्त करने का काम करती है। तो वह लीला कुछ इस प्रकार है। वह लीला कुछ इस प्रकार है। एक बार बलराम दास नाम का एक व्यक्ति था। वह इतना पतित और पापी था कि वह 24 घंटों में से 18 घंटे वैश्याओं के साथ संबंध बनाता था, बाकी 6 घंटे वह सोता था। रथ यात्रा के दौरान वह एक कमरे में एक वैश्या को कपड़े के टुकड़ पहने गले लगा रहा था। अचानक उसे बाहर ढोल की आवाज सुनाई दी और वैश्या से पूछा, बाहर क्या हो रहा है? और वह बड़ी आवाज, क्या है? वैश्या ने उत्तर दिया, अरे क्या आप नहीं जानते कि आज रथ यात्रा है? आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं, इसलिए आप भूल गए होंगे। बलराम दास जी को बड़ी लज्जा आई। उसने सोचा कि मेरे भगवान मेरे लिए अपने दर्शन देने निकले हैं, लेकिन मुझे देखो, मैं कितना पापी हूँ, कितना पतित और आलसी हूँ। भगवान जगन्नाथ के सुंदर स्वरूप को देखने के बजाय मैं इस वैश्य के साथ यहाँ हूँ। जैसे ही बलराम दास जा रहे थे, वैश्या ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने और एक कपड़ा पहनकर भाग निकले। वह तेजी से रथ की ओर दौड़ने लगे और जैसे ही वह रथ पर चढ़े, कुछ पंडों ने उन्हें लात मारी और वे नीचे गिर गए। पंडों ने चिल्लाकर कहा, तुम बहुत निकम्मे और दूषित हो। इस रथ पर चढ़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और तुम भगवान जगन्नाथ को छूना चाहते थे? दफा हो जाओ यहाँ से। पंडों ने उस पर थूका। बलराम दास को अलगाव महसूस हुआ कि पंडों ने उन्हें भगवान के दर्शन नहीं करने दिए। उन्होंने खुद को बहुत पापी महसूस किया और भगवान जगन्नाथ के लिए बहुत रोए। फिर वे समुद्र के किनारे गए और रेत में एक रथ बनाया। वे वहीं समुद्र तट पर बैठ गए और रोए। इस बीच जगन्नाथपुरी के ग्रांड रोड पर भगवान जगन्नाथ का रथ अचानक रुक गया। राजा कई विशाल हाथी और पहलवान लाए। वे सभी रथों को खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सभी के प्रयास व्यर्थ गए। रथ एक इंच भी नहीं हिला। राजा डर गया क्योंकि उस दिन रथ यात्रा रुक गई थी। उस रात राजा के सोने के बाद भगवान जगन्नाथ उनके सपने में प्रकट हुए और उनसे कहा, क्या तुम सोचते हो कि मैं उस रथ में बैठा हूँ? नहीं, मैंने रथ छोड़ दिया है।
इसलिए रथ नहीं चल रहा है। मैं समुद्र के किनारे बलराम दास के रथ के पास गया और मैं उस भली रथ नामक रेत के रथ में बैठा हूँ। तुम उन पंडों के साथ जाओ जिन्होंने बलराम दास को लात मारी, और उनसे कहो कि वे बलराम दास से क्षमा मांगे और बलराम दास को पालकी में बिठाकर वापस जगन्नाथपुरी ले आओ। उन्हें मेरे रथ पर चढ़ने दो। जैसे ही आप बलराम दास को वापस लाएंगे, मैं पीछे चलूंगा। मैं बलराम दास के पीछे चलूंगा क्योंकि वह मेरे शुद्ध भक्त है। भगवान जगन्नाथ को बलराम दास पर दया आई क्योंकि बलराम दास पापों का एहसास हो गया और उन्हें फिर से नहीं करने की ठानी। अगली सुबह राजा पंडों के साथ बलराम दास के पास प्रणाम करने गए और क्षमा की भीख मांगी। फिर उन्हें पालकी में बिठाया, लेकिन बलराम दास उतर गए और कहा कि वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते। वे बहुत तेजी से रथ की ओर भागने लगे। जैसे जैसे वह दौड़ रहे थे, वैसे वैसे भगवान भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। भगवान उछल उछल कर भाग रहे थे। हर कोई इसे अपनी भौतिक आंखों से नहीं देख सकता था, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि वाले जो शुद्ध भक्त थे, वे इस सुंदर दृश्य का आनंद ले सकते थे। जब बलराम दास रथ पर चढ़े तो भगवान भी चढ़े और वे बैठ गए। जैसे ही बलराम दास ने भगवान को गले लगाया, रथ चलने लगा। बलराम दास का हृदय पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने वैश्याओं की संगति, बुरी संगति को छोड़ दिया और एक महान भक्त बन गए, भगवान जगन्नाथ के पंच सखाओं में से एक। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की महिमा का गान करना शुरू कर दिया और भगवान जगन्नाथ के लिए परमानंद में रोने लगे। वे हमेशा जगन्नाथपुरी के मंदिर दर्शन के लिए जाते थे, परिक्रमा करते थे और इस तरह उन्होंने भगवान जगन्नाथ की भक्ति की। तो इस लीला से या इस घटना से हमें ये एहसास होता है कि भगवान की भक्ति करने के लिए हमें चित्त से शुद्ध होना जरूरी है, ना कि तन से। कहते हैं नहा के मंदिर जाओ, सब कुछ करो। हाँ, ये सही है और करना भी चाहिए, लेकिन जब तक आपका चित्त शुद्ध नहीं होगा, तब तक आप किसी भी भगवान या किसी भी शब्दों में भगवान की भक्ति या अर्चना करने की कोशिश करें, भगवान उसे स्वीकार नहीं करेंगे। आज के सत्र के लिए मेरी तरफ से इतना ही। नमस्कारम। धन्यवाद। अब लास्ट के लिए लास्ट डिस्कशन में सुदीप भैया को आमंत्रित करते हैं। सभी को नमस्कार। इतनी देर धैर्य से बैठने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज का सत्र का शीर्षक हमने जो चुना था वो था अर्जुन शरणागति। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि ये जो पहला अध्याय है, पहला अध्याय हमने कर लिया, जिसका शीर्षक हम लोगों ने अर्जुन विषाद योग के अंतर्गत हमने चर्चा की थी, विमर्श की थी। ऐसे ही हम जो दूसरा अध्याय है जिसको सांख्य योग कहा गया है, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। और उसके पहले भाग में हमने अर्जुन शरणागति ऐसा शीर्षक मानकर पहला हमारा आज का सत्र था। और इसमें पहले से लेकर 10वें तक जो श्लोक संख्या है, वहां तक हम अर्जुन शरणागति को देख रहे थे। और अभी थोड़ी देर पहले ही एक कथा के रूप में ही सही, पूजा ने हमें बताया है कि एक सच्ची शरणागति होने का, एक सच्चा शरणागत होने पर किस तरीके से भगवान, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है, भगवान भावनाओं में रहते हैं, भगवान अंदर की नियत देखते हैं। उस कहानी से हमें ये सीख दी कि सच्ची शरणागति अगर हम भगवान की करें तो किस तरीके से सबसे निष्कृष्ट व्यक्ति भी भगवान उसको भी अपने अपने श्री चरणों में स्थान दे देते हैं। आगे हम देखेंगे जब हम अगले सत्र को बढ़ाएंगे, जहां श्लोक संख्या 11 से 38, जिसमें आज मोहित ने 11 से 20 भी कर दिया, लेकिन हम फिर अगले वीक भी इस पे चर्चा करेंगे और विमर्श करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा सब कुछ जानने योग्य है। क्योंकि यहाँ से हम देखेंगे कि भगवान स्वयं अब यहाँ से गीता रूपी वाणी में हमें संदेश दे रहे हैं, चाहे अर्जुन के थ्रू ही दे रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं। इसके उपरांत श्लोक संख्या 39 से 53 कर्मयोग रहेगा, और फिर स्थिति प्रज्ञ लक्षण 54 से लेकर 72। इस विषय में आज का जो हमारा सत्र था, क्योंकि वो अर्जुन शरणागति पे था, तो इस विषय में हमें ये जानना चाहिए कि हमारे जितने शंकराचार्य हुए हैं और जो जो भी अलग मनीषी हुए हैं हमारे,
जैसे कि आप देखेंगे कि बहुत सारी कमेंट्रीज लिखी गई हैं भगवत गीता पे। अगर भगवत गीता की कमेंट्रीज इकट्ठी की जाए तो शायद एक लाइब्रेरी भी बन सके, इतनी कमेंट्रीज हैं। और सभी अपने अपने सिद्धांत के ऊपर अडिग रह के इनकी गीता जी की व्याख्या करते हैं। और इस विषय में देखेंगे कि श्री शंकराचार्य जो आदि गुरु रहे, उनकी कमेंट्री है अद्वैत सिद्धांत पर। और फिर इसके बाद आप देखेंगे रामानुजाचार्य की कमेंट्री। मतलब आप देखेंगे विशेष विशेष, और इवन अभिनव गुप्त की देखेंगे जो कश्मीर शरद दर्शन से जिनका संबंध है। तो आप देखेंगे कि सभी लोगों ने सभी जो हमारे जो मनीषी हुए हैं, या जो सभी शंकराचार्य हुए हैं, उन सभी ने कुछ कुछ ना कुछ अपनी टीका टिप्पणी या फिर टीकाएं भगवत गीता पे लिखी है। और आप ये देखेंगे कि भगवत गीता सबका समन्वय है। मतलब अगर आप देखेंगे कि बहुत जगह आप देखेंगे कि द्वैत सिद्धांती हैं, बहुत जगह अद्वैत सिद्धांती हैं। वो गीता के बहुत सारे मार्मिक श्लोक को अपने अपने सिद्धांत के अपने सिद्धांत में उसको खरा पाएंगे। और बहुत जगह ऐसा देखेंगे कि जैसे भक्ति मार्ग हो गया, वहाँ अद्वैत सिद्धांत थोड़ा सा फीका पड़ेगा। तो वहां पर फिर आपको द्वैत अद्वैत या फिर विशेष अद्वैत या फिर दूसरे सिद्धांतों की तरफ जाना पड़ेगा। अ, आप ये देखेंगे कि गीता में बिल्कुल स्पष्ट वचन है, जैसा कि आखिरी श्लोक में आपने देखा भी होगा कि एक माम मामे वाशो जीवलोके जीवभूता सनातना, जहाँ भगवान ने ये कहा है कि ईश्वर, हम सभी ईश्वर का सनातन अंग है। और हमें ईश्वर की शरणागति करनी चाहिए और उनका आश्रय करना चाहिए, और उसी में हमारा कल्याण है। और तभी हमें जो भगवान आगे हमें कहेंगे कि माम एकम शरणम व्रज, इस सिद्धांत की पोषण, इस सिद्धांत का पोषण होगा। ऐसा मेरा विचार है कि भक्तिहीन कर्म व्यर्थ ही रहे। भक्ति भक्ति ही भक्तिहीन अगर हम हो गए तो हमारा ज्ञान शुष्क और नीरस हो जाएगा। उपनिषदों के अनुसार प्रकृति मिथ्या है, और एकायन प्रकृति को नित्य परंतु परमेश्वर के अधीन मानते हैं। उपनिषद के अनुसार ज्ञानी के लिए प्रकृति विलीन हो जाती है, और एकायन का मत है कि ज्ञानी प्रकृति के खेल को देखा करता है। इस प्रकार ज्ञात है कि पांच रात्र और एकायन के सिद्धांत गीता में स्पष्ट मिलते हैं। यहाँ पर जो मैं आपको, जहां मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ वो है कि हम, क्योंकि हम अभी इस जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम क्योंकि इस अध्यात्म के क्षेत्र में, या ये कह लीजिए अध्यात्म की यात्रा में अभी नए नए हैं। तो हमारे लिए सबसे पहला सूत्र इस पहले 10 श्लोक में जो है वो यह है कि जब अर्जुन बहुत ज्यादा परेशान है, जैसा कि आप सभी ने बताया कि वो बहुत जबरदस्त विषाद के अंदर है, और उनको, जैसे कि मोहित ने भी समझाया आपको, कि किस किस तरीके से वो भगवान को बता रहे हैं कि क्या क्या अनाचार फैलेगा, और किस तरीके से वो अपने धर्म को अपने हिसाब से बता रहे हैं। और लेकिन अंतिम जब उनको ये पता है कि अभी ये इतना ज्यादा उनको डिल्यूजन हो गया, जिसको मोहित ने डिल्यूजन बोला, कि जब उनको ये समझ में आया कि अब इस स्थिति में मैं क्या करूं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 10वें श्लोक के अंदर भगवान स्वयं, अर्जुन स्वयं भगवान को जगत गुरु के रूप में स्टैब्लिश कर रहा है। और इसी वजह से मैं मानूंगा कि इस वजह से हम लोगों ने आज के सत्र का टाइटल भी अर्जुन की शरणागति ऐसा रखा। और श- शरणागति की महिमा कितनी है इसका केवल अनुभव किया जा सकता है जब अपने वश में कुछ ना रहे। जैसे कि अर्जुन के वश में जब कुछ ना रहा, हाथ पांव जवाब दे रहे थे, गांडी छूटा जा रहा है, मुख सूखा जा रहा है, मन अपने आप से दगा कर रहा है। क्योंकि आप देखें कि अर्जुन कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो वह पुरुष है जो जिसने सब कुछ जीता है, अपने इंद्रियों पे जीत पा ली है, जिसको आज भी उल्लेख उल्लेख किया था मोहित ने कि गुडाकेश है वो। उन स्वयं गुडाकेश को एक तरीके से निद्रा जैसा भास हो रहा है, मतलब क्योंकि वो एक तरीके से सच का सामना नहीं करना चाह रहे हैं, वो नहीं करना चाह रहे हैं, जबकि स्वयं ही, आप देखेंगे कि एक श्लोक है जहां पे स्वयं भगवान से कह रहे हैं कि मुझे मध्य में ले चलो। और क्योंकि भगवान हमेशा से ही चतुर रहे, मतलब भगवान चतुर रहे, मतलब उनको पता, मैं ऐसा मानता हूँ कि भगवान बिल्कुल साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग है। मतलब उनने क्या किया है, जाते समय वो चाहते तो रथ को शांति से चुपचाप बीच मध्य में रख देते, लेकिन उनने नहीं रखा। उनने कहा क्या है, देखो कुरुओं को, मतलब उनने ममत्व जगाने का पूरा प्रयास किया अर्जुन के अंदर। और जब वो अब ममत्व देखते हैं, अपने ही भाइयों को देखते हैं, अपने ही सखा संबंधियों को देखते हैं, तो उनका बुद्धि उलझन में पड़ जाती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब भी बुद्धि उलझ पुलझ के हार जाए, जब भी मन अपने आप को दगा दे दे, हाथ पांव जवाब देने लगे, अपने वश में कुछ ना लगे, तब एक ही उपाय रहता है, शरणागति। मतलब उस समय जब व्यक्ति
भगवान इसमें स्वयं अर्जुन कह रहे हैं कि जब अपने वो सारे कर्तव्य भूल गए, वो समझ रहे हैं, वो अपने सारा धैर्य खो बैठ रहे हैं, अत्यंत विचलित महसूस कर रहे हैं, और तब वो बनते हैं शिष्य, और तब भगवान अपनी शरणागति में अपने शिष्य को लेते हैं। तो शरणागति हर भाव का समाधान है, हमें अपनी विवशता की जमीन से ऊपर उठाकर असीम सामर्थ्य के आकाश तक ले जा सकता है। क्योंकि इन भावों के प्रत्युत्तर में हर युग में तारणहारों ने हमसे एक ही चीज कही है, माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ तुम मेरी शरण में आ जाओ। चाहे राजा बाली रहे हो, भगवान सॉरी सुग्रीव रहे हो राम के संदर्भ में त्रेता युग में, चाहे यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर भी जब शरणागति अर्जुन ने की है, तभी भगवान ने उनको स्वीकारा और उनको उनका गुरु होना स्वीकार किया। शरणा जैसे ही शरणागति का सूत्र लगता है, वैसे ही गुरु, मतलब जो कि यहाँ पे भगवान है स्वयं, वो माँ बन जाते हैं और शिष्य उनका शिशु बनता है। और ऐसे शिशु जिसे अपनी गोदी में उठाकर वह दिव्य सत्ता चलती है, मतलब ऐसे शिशु जिसे अपनी गोदी में उठाकर वह दिव्य सत्ता चलती है, तात्पर्य मतलब भगवान अपनी दिव्य सत्ता उसके थ्रू एक्सरसाइज कर लेते हैं। जिसको कबीर ने कभी कभी ये भी कहा है कि राम मेरा सुमिरन करे मैं करूं विश्राम, मतलब अगर व्यक्ति ने, अगर भगवान ने तुम्हारी बात थाम ली, भगवान ने तुम्हारे को थाम लिया, तो फिर कबीर ने इसको बहुत ही ऊंचे शब्दों में कह दिया है कि राम मेरा सुमिरन करे मैं करूं विश्राम। यह एक शरणागत शिष्य की परम अवस्था मानी जाए। और यही नहीं, मैं ऐसा मानूंगा कि सांसारिक हो, सामाजिक हो, भौतिक हो, मानसिक हो, किसी भी तरीके का ताप हो, मतलब जिसको हमारे रामचरितमानस में कहा है ना, अलग अलग तरीके से ताप बताए गए हैं, जिसको कहा जाता है कि राम राज्य में ऐसे कोई ताप नहीं रहेंगे, दैहिक, भौतिक और अलग अलग तरह के, 3 तरह के ताप बताए गए हैं। ऐसी कोई भी ताप हो, कोई भी चिंता हो, उससे निजात पाने का एक ही महाऔषधि है, जो कि शरणागति। इस विषय में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि अभी बीच में एक बहुत ही मार्मिक सा चित्र आया था, जब ज्ञानवापी मंदिर का उल्लेख हुआ था, और ज्ञानवापी मस्जिद और क्या कहते हैं, एक उल्लेख हुआ था। वहां पे आपने देखा होगा कि नंदी स्वयं बैठे हुए हैं अनंत काल से भगवान शिव के शरणागति करे हुए। तो यहाँ पर एक छोटी सी एक आपको कथा सुनाना चाहूंगा, और फिर मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। तो कैलाश की बर्फीली चोटियां हैं, एक पवित्र शिखर पर महादेव शंकर ध्यानस्थ थे। धीरे धीरे यह ध्यान गहन समाधि में विलीन हो गया। इतने में बलंगी में झूमता हुआ महादेव का परम गढ़ नंदी आया। नंदी के मन में विचार उठा, किसी महान लक्ष्य को साधने हेतु मेरे प्रभु आशुतोष समाधि में स्थित है, मुझे भी सहयोग देना चाहिए, दिव्य तरंगों को सघन करना चाहिए। यही विचार नंदी ने महादेव शंकर के समक्ष धरा पर एक आसन बिछाया। फिर पद्मासन में तन को तान कर साधना में बैठ गए। साधना के प्रताप से उसके हृदय का सूक्ष्म तार महादेव की ब्रह्म चेतना से जुड़ गया। तो आपने देखा होगा बहुत से मंदिरों में इस तरह के आपको विग्रह मिलेंगे। कुछ समय बाद एक अप्रिय घटना घटी। दुष्ट जालंधर, जो महादेव से घोर शत्रुता रखता था, वह कैलाश में घुसपैठ कर गया। छल बल से महादेव की भार्या देवी पार्वती का अपहरण कर ले गया। शिवलोक में हाहाकार मच गया। देवगण और शिवगण घोर चिंता से व्याकुल उठे। उन्होंने सामूहिक निर्णय लिया कि दुर्घटना की सूचना महादेव को दी जाए, परंतु कैसे? महादेव तो गहन समाधि में लीन है। श्री गणपति ने उनको उठाने का भरसक प्रयत्न किया, पर विफल रहे। भगवान आशुतोष की समाधि तो शून्यता की अतल गहराइयों को छू चुकी है। आप देखेंगे कि भगवान शिव का एक नाम, जब आप रुद्राष्टकम का अगर अनुशीलन करेंगे, तो एक तुरीय अवस्था नाम से आएगा कि अ, नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। ऐसे करके जब आगे जाएंगे, तो भगवान की एक स्थिति, मतलब भगवान की स्थिति, भगवान आदिशंकर सॉरी शंकर भगवान की स्थिति को बोला गया मूलम तुरीयम चिदाकाश माकाश वासम भजन। तो वहां तुरीय अवस्था बताई जाती है कि भगवान हमेशा तुरीय अवस्था में ही रहते हैं। तो ऐसी समाधि जो तुरीय अवस्था में, जो व्यक्ति, जो भगवान योगी, भगवान शिव कह लीजिए, वो हमेशा रहते हैं, लीन रहते हैं, उनको कैसे उठाया जाए, सभी ने प्रयत्न किया, पर सभी लोग विफल रहे। तो ऐसे में क्या करें? विवेक के देवता श्री गणपति ने युक्ति सुझाई। उन्होंने महादेव के परम गण नंदी को साधन बनाया। ध्यान में लीन नंदी के कान में सारी दुर्घटना कह दी कि देखो किस तरीके से जालंधर पार्वती देवी को अपहरण करके ले गया। इधर नंदी के कान में सूचना गई, और उधर भगवान के नेत्र तुरंत खुल गए। महादेव समाधि से उठ गए। कैसा अद्भुत सूक्ष्म जुड़ाव है भक्त और भगवान का। बस तभी से यह ऐतिहासिक घटना एक आराधना पद्धति और प्रथा के रूप में प्रारंभ हो गई, जो आप मंदिरों में देखते भी हैं कि अनेक शिवालयों में आप देखेंगे कि नंदी स्वयं विराजमान है भगवान शिव के आगे,
और भक्तजन अपनी मनोकामना नंदी के कान में जाके कहते हैं। मान्यता है कि यहाँ से कामना सीधे भगवान तक प्रेषित होती है। मन में जिज्ञासा उठती है, भला ऐसा कौन सा गुण है शिवगण नंदी में, भगवान इसकी बात को अनसुना नहीं कर पाते। एक दिन यही जिज्ञासा माता पार्वती के हृदय में दस्तक देने लगी। पार्वती ने महादेव से पूछा, आपको नंदी इतने प्रिय क्यों है? तो यहाँ पर जो मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि शरणागति का कितना महत्व है वो देखिए। महादेव यहाँ कहते हैं, क्योंकि नंदी मेरे सेवा और भक्ति दोनों का समन्वय है। उसके सेवा कर्म में शौर्य है, धार है, एक सतत वेग है। उसकी भक्ति आराधना में तप है, समर्पण है, निरंतर सुमिरन है। इसलिए नंदी मुझे प्राणवत प्रिय है। तो आप ये देखिए कि जिस तरीके से नंदी ने भगवान शिव की शरणागति को स्वीकार किया, ऐसी मैं आप सभी के लिए कामना करता हूँ कि आने वाली जो हमारी गीता के सत्र हो, इसमें अब हम भगवान के प्रति शरणागति के भाव से, क्योंकि क्योंकि हम लोग आदि शंकराचार्य की परंपरा से या फिर इस तरीके का बहुत क्लिष्ट ज्ञान जो होता है उसमें अभी हम नहीं जा पाएंगे, या हम लोग उतना अपने आप को नहीं उन्मुख कर पाएंगे। लेकिन शरणागति के भाव से अगर हमने इस भगवत गीता का पठन पाठन और एक दूसरे को सिखाने का प्रयत्न किया, तो मेरा ऐसा मानना है इस शरणागति के भाव से हम अवश्य ही अ, आने वाले समय में भगवान के भक्तवत्सल भगवान को अपने अंतःकरण में उतार पाएंगे। ऐसी मैं कामना करते हुए अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। अगले सत्र में आपको आपसे मिलने की अपनी उत्सुकता जाहिर करता हूँ। धन्यवाद। शायद अल्पना का संपर्क टूट गया है। मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप किसी को भी कुछ कहने का शेष रह गया है तो आप जरूर कह दीजिए। मोहित, पूजा, राधिका। अ, अगर आप सभी को कुछ नहीं कहना है इस समय, तो हम सत्र के समापन की ओर बढ़ते हैं। और राधिका से मैं अनुरोध करूंगा कि वो सत्र समापन शांति मंत्र से करें। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।